નમસ્કાર. આપનો પ્રાણવાયુ સતત ચાલતો રહે એવી નિરંતર શુભકામનાઓ રાખતા ફરી એક વખત રિયલ ન્યૂઝ ચેનલના આ વિશેષ સ્ટુડિયો અને વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે છેલ્લા સતત જે કંઈ કાર્યક્રમો પ્રાણવાયુના બેનર તળે યોજી રહ્યા છીએ, ખાસ આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપ સૌને આપનું હેલ્થ ખૂબ સરસ, આપનું આરોગ્ય ખૂબ સરસ બનેલું રહે એવી જ અમારી ઈચ્છા હોય છે. આપને થતા રોગોને ખૂબ નજીકથી સમજી શકો અને આપને સાચું અને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે એવી જ અમારી ઈચ્છા હોય છે. આજે પણ એક નવા રોગ વિશેની વાતો લઈને આવ્યા છીએ, જે રોગ કદાચ ઘણી વખત સમજવો અઘરો થઈ જતો હોય છે, પણ જો યોગ્ય માર્ગદર્શક હોય, યોગ્ય તબીબ હોય તો ખૂબ સરળતાથી એ રોગને ક્યોર કરવો પણ શક્ય બનતો હોય છે. મહિલાઓને ઘણા બધા રોગો થતા હોય છે અને કેટલીક વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે અચાનક જ મહિલા ક્યારેક કોઈ ચેકઅપ માટે જાય અને અચાનક કહી દેવામાં આવે કે તમને કેન્સર છે, તો ડર લાગવો સાહજિક છે. અને એ વખતે મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉઠવા પણ સાહજિક છે કે મને અચાનક આટલો મોટો રોગ કેમ લાગુ પડી ગયો. તો કેવા પ્રકારની કેર્સ લેવી જોઈએ અને કેવા સિમ્ટમ્સ, કેવા કારણો હોય છે કે જે સામાન્ય રીતે મહિલાઓ જોઈ શકે છે, સમજી શકે છે અને આ બાબતે ખૂબ ઝડપથી ચેકઅપ કરાવી શકે છે. આ બધી જ વાતોને લઈને આજે વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે શહેરના ખૂબ નામાંકિત તબીબ ડॉक्टर सोनिया चंदनानी स्टूडियो में उपस्थित है. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करता हूँ. बहुत बहुत स्वागत है आपका. સોનિયાબેન ચંદનાનીનો જો ટૂંકમાં પરિચય આપવામાં આવે તો તેઓ સ્ત્રી રોગ વિશેષજ્ઞ છે. ખાસ કરીને હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સીઝ હોય છે એમાં તેઓ ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટેડ છે અને સક્સેસફુલી આ પ્રેગ્નન્સીઝ તેઓ કરાવી ચૂક્યા છે. પોતાના અભ્યાસકાળ દરમિયાન અને ત્યાર ઉપરાંત તેઓ લગભગ 13 વખત ગોલ્ડ મેડલ પોતાના વિષય માટે મેળવી ચૂક્યા છે. ખાસ કરી અને તેઓએ ટ્રેનિંગ જર્મની, ઇટલી અને સિંગાપોરમાં મેળવી છે અને આ સાથે તેઓ ખાસ સ્ત્રીઓ પ્રત્યે વિશેષ લગાવ ધરાવે છે, કારણ કે સ્ત્રીઓ જ્યારે પોતાની મુશ્કેલીઓ રજૂ કરવાની હોય છે તબીબ પાસે, ત્યારે અનેક બાબતની મૂંઝવણ અનુભવતી હોય છે. એવા સમયે સોનિયાબેન ખૂબ સરસ રીતે તેમને પ્રશ્નો પૂછી, તેમની સાથે સરસ રીતે આત્મીયતા કેળવી અને તેમનો ઉપચાર કરે છે. કોમ્પ્લિકેટેડ કેસીસમાં પણ તેઓ ઇન્ટરેસ્ટેડ રહે છે અને મૂંઝવણભર્યા કોઈ પણ કેસીસ હોય એમને ખૂબ સરસ રીતે તેઓ હેન્ડલ કરી ચૂક્યા છે. 2000થી વધારે જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો, અવેરનેસના કાર્યક્રમો તેઓ કરી ચૂક્યા છે. સેટેલાઇટ સાયન્સ સેન્ટરની બાજુમાં હોસ્પિટલ ધરાવે છે અને આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં મહેમાન બન્યા છે आपने મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે. ફરી એક વખત सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल नेटवर्क के स्टूडियो में. आज हम जिस बात के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है सर्वाइकल कैंसर. तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताएं कि एग्जैक्टली सर्वाइकल कैंसर क्या है. सर्वाइकल कैंसर यानी एक तरह का स्त्रियों में होने वाला कैंसर. पेट के नीचे वाले भाग में जहाँ गर्भाशय होता है उसका जो मुख होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं, है ना. तो हम देखेंगे इस मॉडल में यूट्रस या गर्भपिशवी या गोत्री एक थैली की तरह होती है और जो उसका मुख होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं. यानी सर्वाइकल कैंसर वो होगा जो इस भाग से संबंधित होगा. इसे अगर हम थोड़ा गहराई में जानें तो जब आप डॉक्टरी जांच के लिए जाते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास और जो आपकी आंतरिक योनि मार्ग की जांच होती है उसमें जो सबसे पहला भाग स्त्री रोग विशेषज्ञ देखेंगे वो है सर्विक्स. इस भाग से होने वाले किसी भी प्रकार के कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं. જી, ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર, કદાચ આ શબ્દ અજાણ્યો તો નથી જ, પણ ઘણી બધી કાળજીઓ એના માટે રાખવી પડતી હોય છે અને કેવી રીતે થતું હોય છે. आप हमें बताएंगे सोनिया जी कि सर्वाइकल कैंसर एग्जैक्टली कुछ कारणों से होता है, तो कौन कौन से वो कारण है. कोई भी कैंसर होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है. जैसे मलेरिया के लिए भी अगर मच्छर हमें काटते हैं तो कम से कम 2 हफ्ते का समय उस कीटाणु को हमारे शरीर में चाहिए मलेरिया के लक्षण आने के लिए. ये सर्वाइकल कैंसर भी हमें कम से कम 5 से 15 साल का समय देता है. ये एक तरह के वायरस से होता है. 90% से ऊपर सर्वाइकल कैंसर HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है. अगर इस वायरस पर हम कंट्रोल पा लें
तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि काफ़ी सारे सर्वाइकल कैंसर के केसेस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। जी। आपने जैसे बताया कि 5 साल से 13 साल तक का समय मिलता है, वक्त मिलता है, तो किस तरह से एक सामान्य जो लेडी है, जो गृहिणी है, वो किस तरह से समझ पा सकती है कि उसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी के लक्षण उसे फील हो रहे हैं? मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरे पास सबसे ज़्यादा लेडीज़ जो आती हैं वो इन्फेक्शन यानी योनि संक्रमण के प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं, जी। जिसे वो कई समय तक नकारते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो थोड़ा सफ़ेद पानी है, हल्का सा बदबू आ रहा है, थोड़ा अगर उसमें ब्लड भी है तो कोई दिक्कत नहीं, जी। या पेशाब में भी जलन दुखता है। इस तरह के लक्षणों को वो नकारते रहते हैं, और ये लक्षण धीरे धीरे अगर नकारे जाएं तो कुछ वर्षों में कैंसर का रूप ले सकते हैं। जी। और जनरली किस एज में ये कैंसर लागू हो सकता है? कैंसर होने की अवस्था हमने प्रैक्टिस में देखा तो 25 साल से 65 साल की महिलाओं में किसी को भी ये कैंसर हो सकता है। जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर जल्दी ना देखे जाएं तो बहुत छोटी उम्र में भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, लेकिन लगभग 35 साल और एक सेकेंड पीक जो आता है 60 साल के आसपास, इन दो समय पर ये कैंसर अधिक पाया जाता है। जी। जैसे कि आपने बताया कि डिस्चार्ज में कुछ जो है अनियमित बन जाता है, वो रेगुलर नहीं रहता है, तो जो महिलाएं होती है उसे ये जो लागू पड़ता है सर्वाइकल कैंसर, तो किस तरह से क्यों लागू पड़ता है? जैसे कि आपने बताया कि कुछ वायरस है, एचपीवी वायरस है, वो एंटर होने के कारण, तो ऐसा कौन कौन से हालात में बनता है? अगर योनि मार्ग से इन्फेक्शन छोटी उम्र से ही हमारे अंदर जाए, जिसका कि एक सामान्य सा तरीका हम समझ सकते हैं, यौन संबंध। अगर एक से अधिक पार्टनर्स हों, छोटी उम्र में ही शादी और बच्चे हो जाएं, और वो बच्चे भी 2, 3, 4 यानी कई बार एबॉर्शंस या अनसेफ सेक्स, या आपके पार्टनर्स को कुछ इन्फेक्शंस रहे और आपने ध्यान नहीं दिया, ये छोटी छोटी बातें, इन सभी चीज़ों के कारण कैंसर होने की शक्यता बढ़ जाती है। ये जो योनि मार्ग है, इसमें से सबसे पहला इन्फेक्शन का पॉइंट जो है वो सर्विक्स ही है। योनि यानी वजाइना और सर्विक्स, तो इस जगह अगर बार बार इन्फेक्शंस, डिलीवरीज, एबॉर्शंस होते हैं, या ये वायरस यौन संबंध के बाद अंदर जाकर सेटल हो जाता है, तो कैंसर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो जब महिलाएं आती हैं तो उनके लिए ये जो कैंसर है, ये चेक करने के लिए कौन कौन सी सिस्टम, कौन सी पद्धति रहती है जिससे निदान किस तरह से हो पाता है? कोई भी महिला हमारे पास रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, कई बार जिसे हम एनुअल हेल्थ चेकअप कहते हैं, उसमें हम अपने क्लिनिक में कुछ ही मिनटों में यहाँ से एक स्पेशल ब्रश या स्पैचुला से पूरा डिस्चार्ज जो है, यानी पानी अंदरूनी जो है उसकी जांच हम लोग एक स्लाइड पर ले लेते हैं। देखिए कितना समय लगा। मरीज को हमने अंदरूनी जांच पानी के थ्रू लिया और उसे स्लाइड पर ले लिया, लेकिन इससे भी बेहतर जांच जो हम कहते हैं वो है ब्रश साइटोलॉजी, यानी आपने पानी की जांच को ब्रश में लिया और उसे और सूक्ष्म जांच के लिए लिक्विड बेस्ड चेकअप पे भेजा। इसमें आपको वायरस के बारे में भी जानकारी हो सकती है कि इस संक्रमण में जो हम पैप टेस्ट का टेस्ट करें उसमें वायरस भी है या नहीं। जी। अगर इन टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि जो अंदरूनी टेस्ट है पैप स्मीयर में इन्फेक्शन है या कैंसर होने की शक्यता है या वायरस प्रेजेंट है, तो इन महिलाओं के लिए हमें स्पेशल टेस्टिंग और फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है। जी जी। जनरली कैंसर इतना नाम पड़ता है तो आदमी, जो भी इंसान है, वो आधा तो यूं ही मर जाता है कैंसर का नाम सुनते ही। तो जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं और आप जब उनका निदान करती है तो उनके साथ किस तरह से आगे की बातें होती है और किस तरह से उनका निदान आगे बढ़ता है और समझाती है उसे?
आजकल महिलाओं में जागरूकता तो काफ़ी है। वो लोग पैप स्मीयर के लिए मानसिक रूप से तैयार होकर ही आते हैं, और स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास अगर आते हैं तो इंटरनल चेकअप के लिए भी तैयार आते हैं। लेकिन पैप स्मीयर की रिपोर्ट कई बार 1 दिन से 5 दिन के अंतराल पर हमें मिलती है। जब रिपोर्ट आती है तो हम जो मीटिंग करते हैं उसमें हमें काफ़ी ध्यान से उन्हें आगे का ट्रीटमेंट बताना होता है। वरना पैप स्मीयर में अगर एब्नॉर्मल रिपोर्ट है भी तो भी महिला अगर फॉलोअप के लिए नहीं आती है तो हम जानते हैं कि डेफिनेटली ये कैंसर के रूप में परिवर्तित होने वाला है। या अगर उसमें हमें पैपिलोमा वायरस मिला, हमने उन्हें ट्रीटमेंट बताया, लेकिन जैसा कि हमारे देश में अक्सर होता है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूक नहीं है, तो ये कैंसर की तरफ आगे उन्हें ले जा सकता है। तो वो जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें ही हम रिलेटिव्स के साथ बैठकर फुल डिस्कशन, फुल मैनेजमेंट, आगे का गाइडेंस उन्हें देते हैं। जी जी। जनरली कैंसर्स में जैसे कि हमने बात जो आगे की कि जो पेशेंट है वो वैसे ही आधा हो जाता है, तो इसमें रिस्क कितना है? सर्वाइकल कैंसर में रिस्क कितना रहता है और आगे क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर मैं कहूँ तो महिलाओं में होने वाला सबसे अच्छा कैंसर है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो कम से कम एक ब्रेस्ट का भाग आपको निकालना ही पड़ता है। जी। ओवरीज का कैंसर हमें पता चलने में ही कई साल हो जाते हैं। जी। और वो काफ़ी फैल चुका होने के बाद ही पता चलता है। लेकिन ये जो जानकारी है सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमें अक्सर शुरुआती स्टेजेस में मिल जाती है। जो भी महिलाएं रेगुलर चेकअप में जाती हैं, शुरुआती स्टेज में पता होने से आजकल आप भी जानते हैं कि यूट्रस का ऑपरेशन यानी हिस्टेक्टमी या गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन काफ़ी कॉमन है। जी। तो शुरुआती स्टेज में तो केवल गर्भाशय निकालने से ही हम इसका निदान कर सकते हैं। जी। जो कि कॉमनली एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट है फॉर ऑल फीमेल्स। जी जी। तो जब निदान आ जाता है कि वो कैंसर से पीड़ित है, उसमें सिम्टम्स सब देखे जाते हैं, तो उनके लिए फिर आगे की जो स्ट्रेटेजी, आगे का क्या प्लान रहता है, उसे किस तरह सिक्योर किया जाता है, ट्रीटमेंट्स क्या रहती है? कैंसर कोई भी होता है उसे पहले हम स्टेजिंग और ग्रेडिंग से समझते हैं। ग्रेड यानी वो कितना सीरियस है। इसमें कई तरह के सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, अलग अलग तरह के कार्सिनोमास या कैंसर होते हैं। कैंसर सिर्फ एक नाम है, लेकिन उसके कई सारे और जानने जैसी वस्तुएं होती हैं जो कंसल्टेंट्स को मालूम रहता है। पेशेंट को सिर्फ शायद यही मालूम होगा कि मुझे कैंसर है, डॉक्टर उसे स्टेज और ग्रेड करते हैं। स्टेज यानी केवल इतने ही भाग में है कि बच्चेदानी यानी यूट्रस यानी गर्भाशय तक बढ़ चुका है, या ओवरीज यानी पेट के अंदर तक वो बढ़ चुका है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक अच्छा कैंसर है कि वो ब्लड से इतना अधिक नहीं फैलता। जैसे अगर किसी को लंग कैंसर होता है तो वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये कैंसर लोकलाइज यानी फोकल कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट लोकल तरीके से ही हो सकता है। केवल खराब भाग को ही आप एक कोन के रूप में या शंकु या शंख के रूप में निकालकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और उसके बाद भी हमने पेशेंट्स में प्रेगनेंसी पाई है। जी। सिर्फ उतना बच्चेदानी का भाग निकालकर भी आगे प्रेगनेंसी की संभावना है। और अगर उनका फैमिली कंप्लीट हो चुका है, स्टेज थोड़ा आगे बढ़ गया, तो आप केवल गर्भाशय निकालकर भी ये पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आगे अगर बढ़ता है तो फिर हम ऑन्को सर्जन को भी इन्वॉल्व करते हैं, और जैसा सभी कैंसर्स में होता है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। जी। तो जब बात होती है, आपने बताया कि प्रेगनेंसी उसके बाद भी रह सकती है, तो कभी कभी ऐसा पाया गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कैंसर पाया गया हो? ऐसा मेरे साथ ही कई केसेस में हुआ। 3 केसेस तो मुझे याद हैं, लेकिन वो बहुत ही शुरुआती स्टेज में थे। तो हमने उनका प्रेगनेंसी कंप्लीट किया और उसके बाद उनका वो कंप्लीट ट्रीटमेंट किया। जैसे अभी 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आ रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो भी माँ एक बच्चे को लाती है जीवन में, ज़रूर वो ये चाहती है कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँ। तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी उसे खुद की हेल्थ का और अधिक ध्यान रखना चाहिए, और पैप स्मीयर टेस्टिंग कुछ समय बाद रेगुलरली कराते रहना चाहिए। फिर भी कितना टाइम रखना पड़ता है 2 टेस्ट के बीच में? अगर महिला गर्भवती है तो कम से कम 6 महीने बाद उसे पहला पैप टेस्ट कराना चाहिए। और अगर 18 साल की आयु के बाद उनका पर्सनल लाइफ शुरू हो चुका है, यौन संबंध उन्होंने चालू किए, फिर मैरिज हुआ है या नहीं डजंट मैटर, लेकिन जब भी आपके यौन संबंध शुरू हैं, आपको लगभग हर साल पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए।
और अगर 3 बार आपका टेस्ट नॉर्मल आता है जी। तो फिर आप उसे 3 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे मैंने 2016, 17 और 18 में नॉर्मल रिपोर्ट पाई, तो अगली रिपोर्ट में 2021 में कर सकती हूँ। और आपने जो ट्रीटमेंट्स बताई, आपने स्टेज वाइज सब कुछ बताया कि किस तरह से अलग अलग स्टेज पाए जाते हैं, तो ट्रीटमेंट्स एग्जैक्टली किस तरह से आगे बढ़ती है? मान लीजिए दूसरे स्टेज में है जो पर्सन है वो, तो उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है? अगर लास्ट स्टेज पर है तो उसे किस तरह से क्योर किया जाता है? जैसा मैंने बताया, अगर लोकल भाग होता है और उन्हें आगे प्रेगनेंसी की ज़रूरत होती है, हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है क्योंकि अब तो हमारे पास सरोगेसी यानी सरोगेट मदर्स भी अवेलेबल हैं। जी। लेकिन अगर यूट्रस है तो उन केसेस में भी हमें प्रेगनेंसी का ख्याल रखते हुए वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। और जैसे ही उनको बच्चा मिल गया, आप इस ऑपरेशन के द्वारा यूट्रस पूरा ही निकाल सकते हैं। फिर भी इन लेडीज़ को वेजाइना यानी योनि मार्ग और वल्वा, इनके चेकअप्स रेगुलरली 6 महीने साल में डॉक्टर्स के पास करने पड़ते हैं। लेकिन जो एडवांस्ड केसेस होते हैं जिनमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स की ज़रूरत पड़ती है और उसमें सीटी स्कैन, एमआरआई से उसका इंटरनल स्प्रेड रेगुलरली हमें फॉलो करना पड़ता है, लगभग उसी तरह जैसे किसी भी और कैंसर का किया जाता है। और जब भी कोई दर्द हो तो हमें कहा जाता है कि कोई दर्द ना हो उससे अच्छा है कि पहले से ही इसके बारे में पूरी जानकारी रखें और प्रिकॉशंस ले। तो इस कैंसर के लिए क्या प्रिकॉशंस रहेंगे? प्रिवेंटिव हेल्थ इज़ द बेस्ट हेल्थ, आई फील। जी। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है और 15 अगस्त को हर साल हम प्रिवेंटिव हेल्थ डे मनाते हैं। अपने यहाँ कैंसर डे होता है, एड्स डे होता है। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर हमारे देश की महिलाएं जागरूक हो जाएं, और जो अगले 5 पॉइंट्स मैं कहना चाहती हूँ, अगर आज के हमारे दर्शक ये फॉलो करें तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि हम में से जितने भी कैंसर्स आज हो रहे हैं उसके 10% भी नहीं रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आप सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। नंबर ऑफ पार्टनर्स आप कम से कम रखें, कोशिश करें एक ही रखें, जैसा हमारे हिंदू सिस्टम में माना भी गया है। जी। और अगर आपके पार्टनर को किसी भी तरह का योनि संक्रमण है तो आप ज़रूर कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। उसमें फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं और मेल कॉन्डोम्स भी आते हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको किसी भी हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट से मिल सकती है। अब तो ऑनलाइन काफ़ी सारी जानकारी मिलने लगी है। और छोटी उम्र की जो बच्चियां होती हैं 9 साल की, हालांकि उनमें योनि संक्रमण का चांस नहीं होता, लेकिन जब हमने टेस्ट किया तो पाया कि 5 साल से ऊपर की बच्चियों को भी ये जो कैंसर कॉज करने वाला वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो हमें कई बार उनमें मिला। तो हमने रिसर्च से ये समझा कि ये वायरस को ही अगर हम कंट्रोल में ले लें तो शायद हम इस कैंसर के ऊपर आज़ादी पा लेंगे। इसलिए एक वैक्सीन हमने मार्केट में अवेलेबल करवाया, जिसको लगभग 8 साल हो गए अब, और मैंने हज़ारों महिलाओं को वो वैक्सीन दिया है। और इस वैक्सीन के इस्तेमाल से मुझे लगता है ये बेस्ट प्रिवेंशन होगा कि 9 से 46 साल की सभी महिलाएं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए एक वैक्सीन ले लें और काफ़ी हद तक एश्योर हो जाएं कि मुझे सर्वाइकल कैंसर तो नहीं हो। जी। 1 टाइम रहता है ये? जैसे सभी वैक्सीन्स का होता है, पोलियो, डीपीटी, कुछ डोजेस होते हैं। जी। तो इस वैक्सीन के भी लाइफ टाइम में 3 ही डोजेस होते हैं। जी। और वो कंप्लीट करने के बाद आपके पैप्समियर टेस्टिंग के फ्रीक्वेंसी में भी फ़र्क आ जाता है। आपको फिर हर 5 साल में पैप टेस्ट करवाना होता है। जी जी। आपने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हैंडल किए होंगे, तो पर्टिकुलर जो गर्भाशय के मुख का जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, इसमें आपके पास कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आए हुए हैं? गर्भाशय के मुख की जांच जब हम करते हैं तो ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि शायद ये कैंसर हो सकता है। जी। और उसमें अगर उन्हें गर्भाशय रखने की इच्छा होती है जी, वो केस डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन करके शरीर के किसी भी भाग को निकाल देना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग सर्जन्स हैं तो हम लोग ये काम रोज़ करते हैं। डेफिनेटली हमने कुछ केसेस में ऐसा किया कि कुछ ही भाग को निकाला
और उसके बाद उन्हें स्पेशल IUI टेक्निक से गर्भवती बनाया। जी। तो मैं कहना चाहूँगी कि रेगुलर चेकअप से महिलाएं ना घबराएं। अगर कभी भी अनियमित मासिक होता है, संबंध रखने के बाद ब्लीडिंग होती है, ज़रूर चेकअप कराएं। और ये प्रोग्राम सुनने के बाद ऐसा ना समझें कि मुझे कैंसर ही हो गया अगर मेरा मासिक या माहवारी अनियमित है। जी जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस कभी-कभी आ जाते हैं, तो फिर अगर कोई महिला पीड़ित है सर्वाइकल कैंसर से और उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है, तो फिर उसके जो अंदर के फैलोपियन ट्यूब्स है वगैरह जो भी है, उसे कुछ इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है या उसे कुछ नहीं होता है? अक्सर स्टेज 1 और 2 में जी। हम ओवरीज और ट्यूब्स को यूजुअली बॉडी से हटाते नहीं हैं, क्योंकि यंग महिलाएं जो होती हैं 55 साल से कम की उम्र की, उनमें ओवरीज एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, जिससे उनका स्त्रीपन होता है। जी। तो ओवरीज हम लोग नहीं निकालते हैं और इसलिए उनके स्त्रीपन में भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कैंसर आगे बढ़ गया है तो हम एक स्पेशल हिस्टेक्टमी करते हैं, उसमें हम वर्दाइन हिस्टेक्टमी करते हैं और इसमें हमें ओवरीज और ट्यूब्स को भी हटा देना पड़ता है। लेकिन उनके फॉलोअप में फिर हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना पड़ता है। जी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से भी इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है, तो वो किस तरह से बढ़ जाती हैं? हमने ये पाया कि जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं जी। वो अक्सर अपने मन से ही कई वर्ष तक उसे इस्तेमाल करती रहती हैं। जी। अगर आप ये देखेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स महिलाएं ले रही हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कारण वो कैंसर नहीं बढ़ता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने फिर बीच में डॉक्टरी जांच नहीं करवाई, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेते तो शायद इन्फेक्शंस होते या प्रेगनेंसीज होते अनवांटेड और वो डॉक्टर से मिलते। लेकिन इन महिलाओं ने कंटिन्यूस पिल्स अपने मन से लिए विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस, तो इन्फेक्शंस और फॉलोअप्स इन लोगों के रेगुलर नहीं हो पाते। जैसे कॉपर टी आपको डॉक्टर के पास जाना है तो आपका एक चेकअप हो ही जाएगा, लेकिन आप अपने मन से अगर टैबलेट्स रेगुलरली 5 साल 7 साल बिना डॉक्टर से पूछे खा रहे हो तो कैंसर होने की शक्यता इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आपकी डॉक्टरी जांच नहीं हुई। कोई भी पिल अगर लंबे समय तक ली जाए तो उसके शरीर में कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पिल्स से कैंसर नहीं होता। अगर आपने फॉलोअप किया है, डॉक्टरी सलाह से लिया है, तो पर्ल से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से कैंसर नहीं होता। इट इज़ अ मिथ। लेकिन अगर आपने पिल्स लिए और आपने फॉलोअप नहीं रखा तो आप में इन्फेक्शंस और इवन कैंसर्स की शक्यता बढ़ जाती है। अगर मैं 7 साल तक पिल्स खा रही हूँ लेकिन मैंने हर साल पैप्समियर टेस्ट किया तो मुझे कैंसर नहीं होगा। जी। प्रिवेंशन के बारे में हमने काफ़ी कुछ बातें कही, मगर जो महिलाएं अपनी जो क्लीनिनेस जो रखनी चाहिए उसमें किस तरह की केयर ले तो ये संभावनाएं कम हो जाती हैं? ये सवाल 2020 की गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। जी। बिकॉज पहले हमारा जो पहनावा था साड़ी जी या सलवार सूट, और आजकल जो हमारी बेटियां पहनती हैं वो है जीन्स, लेगिंग्स जी। और उसमें भी कई बार अब वो घर से दूर रहते हैं तो कपड़ों की धुलाई की समस्या बहुत होती है। जी। अब जैसे अभी मॉनसून सीजन है तो वेटनेस ज़्यादा होता है और हम सूरत शहर में हैं, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें, और फिर अभी के जो युवा हैं उनमें मैंने 2-3 चीज़ें देखी कि उन्हें हर कुछ बहुत फास्ट चाहिए होता है। जी। तो वो लोग फास्ट फूड, फास्ट चेंज, एवरीथिंग इज़ वेरी फास्ट, तो खुद पर ध्यान काफ़ी कम हो जाता है। रातों को देर तक जागते हैं और दिनचर्या काफ़ी बदल जाती है। तो साफ़ सफाई में भी उनका ध्यान काफ़ी कम है। अगर हम अपनी दादी माँ को देखें तो वो कम से कम 25 बार हाथ धोते होंगे, रसोई में भी। और आजकल के युवा के पास तो पॉकेट में ही वो सैनिटाइजर्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। तो खैर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं शादीशुदा ज़िंदगी में होती हैं, अगर वो कम से कम 2 बार अपने आंतरिक अंगों की सफाई का ध्यान रखें और उसे सूखा रखें, कीप ड्राई एंड क्लीन, साफ और सूखा रखें। और जब भी अधिक बाल होते हैं तो उसे किसी हाइजीनिक तरीके से हटाएं। अपनी अंदरूनी कपड़ों की ध्यान, साफ सफाई खुद अपने हाथ से करें। और
एक स्पेशल वॉश भी आता है, फेमिनाइन वॉश, उससे उनका पीएच बैलेंस भी रहता है। तो चाहे उसी से वॉश करें या साबुन, जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जब भी इन्फेक्शन लगे, खुद में लगे कि बदलाव है, कुछ बदबू है, कुछ चेंज है, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, उसमें नकारें नहीं, लेट ना करें। जी। जब कोई भी हॉस्पिटल पर पहुंचता है तो उसकी जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल बदल जाती है। ऐसे में अगर आप किसी को कहती है कि आप सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है तो उनकी मनोस्थिति को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा, तो आप किस तरह से वो हैंडल करती है? बहुत ही गहरा सवाल है। मनोवैज्ञानिक रूप से हमें उन्हें संभालना पड़ता है। मेरी टीम में काउंसलर भी हैं जी। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी हम ऐसा कुछ डायग्नोज करते हैं तो हम उनसे फिर पूरे परिवार से एक बातचीत करते हैं, पूरी टीम की तरह, कि देखिए ये प्रॉब्लम है और इसका निदान ये है, और जितना जल्दी इसका इलाज हो उतना ही मरीज के लिए अच्छा होता है। जी। और जो भी डिसीजन है उन्हें क्लियरली हम बता देते हैं, उसमें हम कभी भी लेट नहीं करते हमारी तरफ से। और हमने अक्सर ऐसा देखा कि हमारा ट्रीटमेंट या डिसीजन अगर हम काउंसलर के साथ लेते हैं तो बाद के ट्रीटमेंट के फॉलोअप में भी उन्हें काफ़ी आसानी होती है। एक बार वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो आज की पीढ़ी काफ़ी फास्ट है। एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर ले लिया। जी जी। तो वो समझ सकती है और काफ़ी अच्छी तरह से उनको काउंसलिंग किया जाता है काउंसलर्स के द्वारा, तो वो अच्छी तरह से वो आगे बढ़ पाती है। आप साथ में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी है, तो काफ़ी आपके पास जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी आपने सॉल्व की हुई है, तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आए हो, कुछ कोई यादगार किस्सा बन गया हो, तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जिनमें 9 से 16 बार अबॉर्शंस हो चुके थे, उनके पास एक भी बच्चा नहीं था, और महिलाओं की उम्र 45 साल से भी ऊपर थी। कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी भी वो लोग ट्राई कर चुके थे। हमने ऐसे कम से कम 100 कपल्स को बच्चे दिए हैं, और नॉर्मल तरीके से विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। काफ़ी सारे डेफिशिएंसीज होते हैं प्रेगनेंसी में, और उसमें कई बार उन्हें कहा जाता है कि आपका बच्चा एबनॉर्मल है, लेकिन हमने कई सारे ऐसे बच्चों को भी बचाया जो अंदर थे और अबॉर्शन की कगार पर थे। मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम है सेव गर्ल चाइल्ड का। जब भी उन्हें पहला गर्ल चाइल्ड होता है और दूसरे में वो कोशिश करते हैं कि डॉक्टर हमें पता चल जाए या हम अबॉर्शन करवा लें, उसमें हमने एक ऑफ़र उनके लिए रखा है कि अगर बेटी आई तो आप हमें दे दीजिएगा और पूरा डिलीवरी का चार्ज हॉस्पिटल लेगा, उस बच्चे की आगे की केयर भी हॉस्पिटल लेगा। तो हम प्रमोट करते हैं कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन ना करवाएं, और जो भी बच्चा है उसे अच्छी तरह पनपने दें। ये ऐसे बहुत सारे यादगार मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, और फिर अक्सर हमने देखा कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास ऐसे भी फैमिलीज़ हैं जिनमें 3 से 5 गर्ल्स एक ही फैमिली में हैं, और मोर देन 50 कपल्स दे हैव हैप्पीली एक्सेप्टेड देयर गर्ल सेकंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड वेरी वेल। सो इट गिव्स मी अ प्राउड मोमेंट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये शेयर करने में कि बहुत सारी खुशियाँ हमारी टीम ने बांटी हैं जी। और हम आगे भी तैयार हैं। पर मैं चाहूँगी हम सभी महिलाएं दर्शक जो हैं मेरे साथ एक लाइन बोलें। मैं हूँ महिला प्रतिभाशाली, करूँगी इंडिया कैंसर से खाली। ये पूरा प्रोग्राम हमने कैंसर पे लिया, और इसीलिए लिया क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा कैंसर हमारे देश में होता है। विश्व में कहूँ तो 1/4 सर्वाइकल कैंसर हमारे देश से हो रहा है। हम केवल डायबिटीज़ कैपिटल ही नहीं हैं, हम सर्वाइकल कैंसर कैपिटल भी हैं। करीब करीब रेशियो क्या है हमारे देश में? हर साल अगर एक बस एक्सीडेंट हो और जिसमें 100 के 100 यात्री एक साथ गुजर जाएं, तो कितनी सनसनी होती है मीडिया में। जी। लगभग 2.5 लाख महिलाएं हर वर्ष इस कैंसर के कारण गुजर जाती हैं। लगभग 6 लाख नए कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हर साल हमारे टाटा हॉस्पिटल में डायग्नोज होते हैं। आपकी एक छोटी सी पहल न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को एक बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकती है।
बहुत ही यूज़फुल जानकारी थी सबके लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि ये आवश्यकता है कि प्रिकॉशंस प्रिवेंशन के जो लिया जाए, प्रिकॉशंस लिया जाए, बहुत ज़रूरी रहता है। तो आपने बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी, और आपकी ओर से एक मैसेज भी आप कन्वे करें हमारे दर्शकों के लिए। अभी वर्किंग वुमेन का परसेंटेज बढ़ रहा है। हमारी बच्चियां न केवल घर पर एज अ हाउसवाइफ बल्कि काफ़ी सारा रोल बाहर भी प्ले कर रही हैं। मैं आपके स्टूडियो में भी देख रही हूँ कि काफ़ी सारी महिलाएं हैं, और चाइना भी ऐसा कंट्री है जिसमें काफ़ी सारी महिलाएं ही हैं। तो चाहूँगी कि हम सभी ये समझ लें कि मुश्किलें तो आएंगी ही जी लेकिन हमें हारना नहीं है। जी मुश्किलों से कह देना है जी कि मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। एंड व्हाट इज खुदा? यू आर खुद, योर ओन सेल्फ, नारी शक्ति। जी, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए हमारे प्रोग्राम में और हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Radio